पंजाब जीके ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅਰੂ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਡ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਮੈਥ ਆਫ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅਰੂ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਡ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਮੈਥ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। Central Sikh League demanded administration of Golden Temple to be transferred from इतिहास फॉर्म नहीं from होना चाहिए to an elected body of Sikhs. The British regime appointed as provisional committee of 36 persons to formulate proposals regarding operation of Golden Temple. ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MP ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो ये गल ठीक है कि अरू सिंह ने जनरल डायर को सन्मानित किया सीगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूजी, सेंट्रल सिख लीग डिमांडेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोल्डन टेंपल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इत्थे फ्रॉम होएगा जी गवर्नमेंट टू एन इलैक्टेड बॉडी ऑफ सिख्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इत्थे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल सिख लीग की चीज़ है। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ब्रिटिश सरकार जी सी अपॉइंट कर जाती सी, खास तौर पर गोल्डन टैंपल के उत्ते। बाकी जगहों के उत्ते उन्होंने कहा कि कानून है, कानून के बेसिस के उत्ते जोड़े मोस्टली गुरुद्वारा साहब डेरे बने हुए थे। जिवें आप देखिए कि ननकाना साहब का गुरुद्वारा सीगा, उत्थे महंत जिहड़े सीगे उन्होंने कब्जा किया होया सी और उन्हां दियां जिहड़ियां हरकतां सीगियां वो बहुत गैर कानूनी हरकतां रहियां। तो इसे करके बाद विच उत्थे फिर साका ननकाना साहब भी होया। तो सब तो पहला गोल्डन टैंपल की एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते जिहड़ा सीगा सेंट्रल सिख लीग जिहड़ी सीगी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और इन्होंने आवाज़ चकी कि इहदी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी सीगी ओह एक इलैक्टेड बॉडी दे कोल होनी चाहिए है। तो उस चीज़ को देखते हुए तो किते ना किते ब्रिटिश सरकार ने एक 36 मैंबरा कमेटी बनाई, 36 मैंबर कमेटी बनाई और उहदे विच उन्होंने अपने ही बंदे रखे हुए थे, कोई बाहरले बंदे तो है नहीं सीगे। उन्होंने ये कहा कि तुसी कोई प्रपोजल दो, प्रपोजल उन्होंने कुछ नहीं दी। तो इस तरीके नाल ये स्टेटस को रहा। तो आप देखते हैं कि तीनों स्टेटमेंट जिहड़ियां सीगियां ये ठीक ने। तो इसका जवाब की होया, ऑल ऑफ अबव आर करैक्ट ऑल्सो। नाल ही इत्थे मैनूं दसना जरूरी है इत्थे कि सेंट्रल सिख लीग ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया सीगा जिहड़ा कि तकरीबन सैप्टंबर 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ कि जिन्हें अपने शेड्यूल कास्ट से जिन्हें भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुरुद्वारा सीगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ और उन्होंने नाल आप कह जो शेड्यूल कास्ट ने वह भी नाल गए। तो जदों उत्थे गए क्योंकि उन्होंने कड़ाह प्रसाद कराने की इजाजत नहीं सी हरमंदर साहब दे विच,
ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 175 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 175 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 36 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀਜ਼ ਅਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੀਜ਼ ਅਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। Which one amongst the following landforms have been badly dissected with chows? ਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਿਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਐਲਿਊਅਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਢੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਢੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਚੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ 250-300 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਵਈਏ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। Guru Gobind Singh Ji accompanied Emperor Bahadur Shah up to which place situated on the bank of river so and so? So ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
तो इत्थे ऑप्शंस की है, बिदर ते कृष्णा, नंदेड़ ते कावेरी, नंदेड़ ते गोदावरी, बिदर ते महानदी। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਜਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਈਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 3 ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮੌਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੈਟਲ ਜੰਜੂਆ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜ਼ਮ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਮ ਬਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਤੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਉਹ? ਤੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਦੇੜ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤਿਆਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਦੇੜ। ਪਰ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਨੰਦੇੜ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਨੰਦੇੜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗੋਦਾਵਰੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਸੋ ਇਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਹਿਰ। ਅਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਰਮਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਦਰਨ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ MGKK ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, MGKK, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ। ਤੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਦੇੜ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਵੀ ਸਿਧਾਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੂਟ, ਇਹ ਫੋਏਬਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪਤਨੀ, ਆਖਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1839 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਰੀਜੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1843 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1845 ਤੱਕ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ 1845-46 ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1846 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 1846 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟੀ ਆਫ ਭੈਰੋਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਨਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਚਨਾਰ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਚਨਾਰ। ਚਨਾਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਚਲਾਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਚਨਾਰ ਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਨੇਪਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੈਨੀ ਰਾਜਾਜ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੇਮ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ। ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਵਰ ਜ਼ਸਕਾਰ ਇਜ਼ ਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਰਿਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਸੀ, ਇੰਡਸ ਸੀ, ਚਨਾਬ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਸੀ ਇਹ? तो ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਜਸਕਾਰ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਸਕਾਰ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਸਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਲੇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਰਿਆ, ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਯੋਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਗਾਰ, ਗਿਲਗਿਟ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਗਾ ਪਰਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਾਕੋਰਮ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਟੇਕ ਮਪਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। 2000 ਮੀਲ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ, 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਫਲੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦੈਟ ਆਫ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ। ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Next question is, which among the following two Indian states were mostly affected during the partition of 1947? So, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 2 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ। ਸੋ ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਸ਼ ਡਿਫੀਟਡ ਡੈਸ਼। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਤੇ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸ਼ ਡਿਫੀਟਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਧ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦ ਫਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਰਵਾ ਬਿਨ ए हाकिम राजा छछ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ, ਅਬਦੁਲ ਅਲ ਮਲਿਕ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ। ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੇਵਲ ਅਟੈਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੇਵਲ ਅਟੈਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 711 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
और ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਗੋਜ਼ਾ। ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਇਟਸ ਏ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। तो इनू अलगोजा कहा जाए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पंजाब बजट व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जिहड़ा सीगा ये किहनूं कहा जाता है, ये सानूं जिहड़ा सीगा क्वेश्चन हैगा। फिस्कल डेफिसिट एक कॉमन दी टर्म है, इट इज़ नॉट कि पंजाब डेफिसिट, सारे डेफिसिट दे विच फिस्कल डेफिसिट एक होगी कि खर्चे वध आमदन घट, ठीक है जी। सो जिन्ना खर्चा ज़्यादा उन्होंने आपां की कहांगे, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट कहांगे। उन्होंने की कहंदे आपां फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। द गैप बिटवीन रेवन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट उन्होंने जिहड़ा सीगा की कहा जाता है, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। सो बी ऑप्शन जिहड़ा सी साडा इहदे च जवाब हो गया जी। इत्थे ये भी आप देख लीए थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन होर जिहड़ी कि आपां नूं पता होनी चाहिए कि पंजाब दा जिहड़ा बजट सीगा, टोटल अप्रॉक्सीमेट बजट जिहड़ा सीगा वो किन्ना सीगा। पंजाब दा टोटल जिहड़ा बजट सीगा दैट इज़ जी GDP सीगी वो 6,98,000 करोड़ की सीगी, जी कि 2023-24 के बजट प्रोजेक्ट की गई है। और टोटल बजट जोड़ा है इन्हों का दैट इज़ कोई 1,34,000 करोड़ के करीब का जोड़ा सीगा पंजाब का बजट सीगा। और रेवन्यू डेफिसिट जोड़ा सीगा दैट इज़ 3.5% ऑफ GDP। वो कितना है जी 3.5% ऑफ GDP वो है। तो यह इंफॉर्मेशन जी सी सानू पता होनी चाहिए। पेंशन द पीरियड ऑफ पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जी सी कदों हुई, यह हुई जी 1907-8 जी मूवमेंट हुई जदों कि अंग्रेज़ों ने कुछ कानून पास किए थे। और वो किहड़े कानून से जिहड़े पास किए थे, एक तो सीगा बारी दुआब एक्ट पास किया, एक लैंड अलाइनेशन एक्ट जिहड़ा सीगा 1901 का सीगा, बारी दुआब एक्ट जिहड़ा सीगा 1906 का वो पास किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ और एक लैंड अलाइनेशन एक्ट 1906 पास किया सीगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ लैंड अलाइनेशन एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਾਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने जमीनों वापस भी लै सकती। इस तरीके दे नाल एक जिमींदारा मूवमेंट सी जी कि 1907-8 हुई। पगड़ी संभाल जट्टा जिहड़ा सीगा फिर उस वेले नारा लग्या सीगा। और तुहानूं याद होना कि इहदी मूवमेंट नूं लीड किहने कीता सीगा, सरदार किशन सिंह। किशन सिंह जिहड़े कि भगत सिंह दे चाचा ही सीगे, उन्होंने इस मूवमेंट नूं लीड कीता सीगा। तो और पगड़ी संभाल जट्टा ये सॉन्ग जिहड़ा सीगा बहुत मशहूर रहा उस वेले। किने लिखा सीगा ये बांके दयाल। बांके दयाल जिहड़े सीगे उस वेले एक एडिटर सीगे अखबार दे, उन्हां दा लिखिया होया ये पगड़ी संभाल जट्टा गाना सी। डैश इज़ ए कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप बिटवीन मुर्शिद एंड ए मुरीद। क्योंकि किते ना किते असीं देखदे हां कि हुण सूफीज़म दे उत्ते भी क्वेश्चन हो गए ने। तो इसदा मतलब कि टर्म्स का भी सानूं पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप बिटवीन मुर्शिद एंड मुर्शीद नूं की कहा जाता, उन्होंने सिलसिला कहा जाता है। जदों कि एक चिश्ती सिलसिला हो गया, नक्शबंदी सिलसिला हो गया तुहाडा ये, इस तरीके नाल जिहड़े एक ट्रेडिशन चली जाती है उन्होंने फिर की कहा जाता, उन्होंने सिलसिला कहा जाता है। तो खानका किहड़ी हुंदी है, खानका वो इंपॉर्टेंट प्लेस जिथे कि पीर पैगंबर जाके रहिंदे ने उन्होंने खानका, और जिथे कि लोगों को सहारा मिलता है, गरीब लोग जाके खाना खा सकते हैं, रहने जगह मिलती है, उन्होंने खानका कहा जाता है। दरगाह जिथे कि उन्हों की मज़ार होंगी है पीरां की, उन्होंने दरगाह कहते हैं। जिक्र तौबा, जिक्र तौबा का मतलब की होंदा कि रब नूं याद करना, उन्होंने जिक्र तौबा कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स ने, इन्हों याद रखो। पोरस वॉज डिफीटेड बाय अलेक्जेंड्रा इन बैटल ऑफ डैश विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ डैश। जो अलेक्जेंडर, नॉट अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंडर सिकंदर, सिकंदर ने किनू हराया सीगा, पोरस नूं हराया सीगा। और किहदी मदद नाल हराया सीगा और किहड़ी लड़ाई दे विच हराया सीगा। तो इत्थे कदों हुई सी लड़ाई, ये 326 दे विच हुई सी।
326 BC ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਬੈਟਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਾਡੈਸਪਸ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਹਾਡੈਸਪਸ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਅੰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮਲ ਅਖਾੜਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलिए 66 मॉक के क्वेश्चंस देखते हैं क्या रहेंगे, एंड प्लीज टेल योर स्कोर एट द एंड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? ठीक है, सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज एडॉर्न्ड विद द किंग ऑफ महाराजा आदिराज, यानी कि किंग्स ऑफ किंग? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के थे। Who among the following sultans of Delhi has been described by the historian as a mixture of opposites? ठीक है, mixture of opposites किसे कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक साहब को। ठीक है। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम? ठीक है, वैसे कहाँ से बिलोंग कर, उसकी बिलोंगिंग पूछी गई तो ही बिलोंग टू फरगना, आज की डेट में उज्बेकिस्तान में है ये जगह। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है। बंगाल के आसपास के जो रीजन्स थे विद द ब्रिटिशर्स कंसेप्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और फोर्थ। यानी सिराजुद्दौला ऑब्जेक्टेड द मिसयूज ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ बंगाल इन बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 कंप्लीटेड द विक्ट्री एंड डोमेन इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन। दोनों स्टेटमेंट ट्रू। Who among the following was called as the father of Indian Renaissance? ठीक है, रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब पुनर्जागरण, तो ये टाइटल दिया गया था राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है। Which among the following was the most immediate factor for spread of Swadeshi boycott of the foreign goods during the first decade of the present century? तो इसका सबसे बड़ा कारण था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। The Constitution of India was enacted by the Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan, जो कि मई 16, 1946 को भारत आया। Which of the following is a feature of parliamentary form of government? Parliamentary form का क्या execute features है? Executive is responsible to legislate। ठीक है। Which of the following state was the first to annexed by the doctrine of lapse? तो पहली स्टेट जो कवर की गई थी वो सातारा थी। आप ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? तो जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई महंगाई, इन्फ्लेशन का इंडिकेटर होता है। द गुड्स विच डू नॉट कमांड एनी प्राइस आर कॉल्ड एज फ्री गुड्स। फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्लान्ड एंड डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय, इट वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिस्कल। अगर मॉनेटरी होता तो आंसर हो जाता आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन हो। A change in distribution of power between the center and state can be done by amending the constitution. What is the phone number of the National Helpline Against Atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribe, launched on December 13? तो नंबर क्या था? 14566. Pair of Swastik Raj, Ranki Reddy and Chirag Shetty scripted the history by becoming the first Indian to clinch the men's double title on June 18 in the Dash Open tournament. So it was Indonesian Open tournament. Okay. Who has been appointed as the new secretary, head of the research and analysis wing? So it is Ravi Sinha जो है वो रॉ के नए हेड चुने गए हैं। Olympian C.A. Bhanvi Devi created history in 19 June by securing the India's first ever medal at the Asian Fencing Championship, a bronze in the women's sabre event in the Wuxi, China. She hails from which state? तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं आपकी भवानी देवी। सॉरी। ट्रेड गैप किसे कहा जाता है? ट्रेड गैप होता है इट्स द टोटल गैप बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड टोटल एक्सपोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इट वाज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। रथ यात्रा इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, इट्स ओरिजिनली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो इट इज बिलोंग टू ओडिशा, जगन्नाथपुरी। A grand dash hall has been made in the center of new parliament building showcasing the India's democratic heritage. से a grand constitutional hall जो है वो सेटअप किया गया है। In which sports Abhishek Verma clinched the gold medal for India in an international event on June 17, Medellin, Colombia में? It is in archery. The Indian government recently
मेड अ गिफ्ट ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ड सर्विस मिसाइल कोवर्ट आईएनएस किरपान, तो किस कंट्री को दिया है? ये वियतनाम को दिया गया। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस वीक न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर पार्ट्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं, तो आज मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं और यहाँ पे हम मॉक नंबर 6 को चेक करेंगे। चलिए बेटा, चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज अ बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफ फॉर ऑल द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का पीपीटी की बात करी गई है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड व्यू या फिर आउटलाइन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। देखो, आउटलाइन की का मतलब क्या है? आउटलाइनिंग आपके पास दिखानी है, बाहर की आउटलाइनिंग तो नहीं होगा। स्लाइड व्यू भी नहीं होगा। स्लाइड का मतलब जो स्लाइड आपके पास चल रही है वो भी नहीं होगा। नोट्स पेज व्यू, जो आपके पास पेज के ऊपर व्यू लगा हुआ है, नोट्स के ऊपर लगाया है, तो वो भी आपके पास नहीं होगा। तो सबसे अच्छा जो व्यू माना जाता है वो कौन सा होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। आपके पास पूरा का पूरा स्लाइड में सॉर्ट करके दिखाया जाता है, और इसी चीज की यहाँ पे क्या करी गई है? बात करी गई। नेक्स्ट बात करता हूँ, चूज द वेब ब्राउजर अमंग द फॉलोइंग। इन सभी में वेब ब्राउजर बताइए। तो MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, rediff.net और आपके पास नेटस्केप नेविगेटर। MSN मैसेंजर, ये तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये ब्राउजर थोड़ी एक मैसेंजर है जिसके मैसेज की बात होती है। याहू का भी खुद का मैसेंजर था जिसके थ्रू पहले हम लोग बात किया करते थे। अगर बात करता हूँ रेडिफेबल डॉट रेड में आपके पास, तो ये तो कुछ है ही नहीं, अपने गलत है। तो नेटस्केप नेविगेटर ये एक पुराना नेविगेटर था, एक पुराना ब्राउजर था जिसके चीज़ों को ब्राउज किया। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर आपको पता हो, ये एक ब्राउजर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। विच प्रोसेस check to ensure the component of computer and operating are connected to properly। मतलब आपके पास जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा प्रोसेस तो सारी की सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है कि सारा का सारा कंप्यूटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग। तो देखो, एडिटिंग का नाम सुनते तो आपको पता चल रहा है कि एडिट की तो कोई बात ही नहीं हुई है, सेव की तो बात ही नहीं हुई है। प्रोसेस का मतलब है डेटा को चला के चेक करना, भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? बूट। बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर पार्ट्स एंड टू एंश्योर कि ऑल द सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बूटिंग। अगर बूटिंग सबसे पहले ये एंश्योर करता है कि जो भी आपने किया है वो सारा का सारा सही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? सबसे पहले एक आपके पास लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, तो गलत है। अगला क्या है? अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कंप्यूटर। अगला है एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, या फिर अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज अ कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेशन बिन वन टू अनदर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। यहाँ पे इसी के थ्रू आप लोग सारा के सारा कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग डैश लैंग्वेज है यहाँ। तो असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट। अब सोर्स क्या होता है? सोर्स कोड होता है जो कि मैंने बनाया आपके पास। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कोड जो मैंने सेंड किया ये भी नहीं होगा। असेंबली का मतलब होता है कि असेंबल करके, इकट्ठा करके किसी चीज़ को बनाया, तो यहाँ पे भी नहीं था। अब यहाँ पे जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मीनिंग था 0-1 की लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज जाना जाता है। ठीक है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट वे ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सा जो है तरीका नहीं है इंटरनेट से कनेक्ट का? तो DSN डोमेन नेम सर्वर, ये तो तरीका है, बिल्कुल ही है। ISDN, ठीक है, ये भी है। डायल अप, ये भी है। TCP/IP जो है वो तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि TCP/IP इज एन ट्रेडिशनल मेथड जिसके थ्रू आप लोग आते हैं, जुड़ते नहीं है। इसका फुल फॉर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आप पे याद रखना। ठीक है, तो बाकी सारे के सारे क्या है, तरीके हैं, पर ये जो है एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू इंटरनेट चलाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो आपके पास क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटेक्स ऑफ URL। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म URL का क्या होता है? रिसोर्स लोकेटर। सबसे पहला तो इसी का फुल फॉर्म रहता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्या है? john@xyz.com, C:\\windows या फिर HTML या फिर AOL.com। देखो, जब भी आप लोग अगर बात करता हूँ तो इन दोनों में सबसे पहले ये बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बैकस्लैश यहाँ पे यूज नहीं होगा आपके पास, और लास्ट में HTML नहीं, HTML एक पेज होता है। अब इन दोनों में अगर बात करता हूँ, देखो यहाँ पे भी .com है, यहाँ पे भी .com है, और यहाँ पे @ जो है वो जनरली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने है। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये जीमेल का एड्रेस बन सकता था, पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? AOL.com, मतलब आखिरी में जो डोमेन नाम होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास AOL.com इसका फाइनल आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, इंटरनेट यूज, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, फिर टेलेक्स स्विचिंग। तो याद रखेंगे यहाँ पे पैकेट स्विचिंग जो है तो हम लोग काम करते हैं पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करके, पैकेट्स के थ्रू आप लोग चीज़ों को छोड़ के आगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड। ठीक है, तो आप कंप्यूटर के थ्रू जोड़ते हैं चीज़ों को आगे फर्दर करते हैं। सारा सारा काम किसके थ्रू होता है? क्लाइंट के थ्रू, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्लाइंट तो मैं हूँ, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका पार्ट नहीं है। इसका पार्ट क्या है? थ्रू नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और आगे से फर्दर क्या करता है, सेंड किया जाता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके लिए यहाँ पे चलाया जाता है, इस बारी हम इस मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आपके पास रहेगा। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑल फ्लावर आर रूम। सारे के सारे फ्लावर क्या हैं आपके पास? रूम है। एंड सम रूम आर विंडो एंड ऑल कार्ड आर विंडो। ऑल कार्ड आर विंडो। देखो जी, सबसे पहले सम कार्ड आर फ्लावर, सम कार्ड और फ्लावर के बीच में कोरिलेशन, सम कार्ड आर रूम, सम कार्ड आर रूम के बीच में कोरिलेशन, सम विंडो आर फ्लावर, सम विंडो आर फ्लावर, एंड ऑल कार्ड आर रूम, ऑल कार्ड आर रूम। अभी सारे के सारे यहाँ पे गलत है, तो आंसर क्या आएगा? नन फॉलोज, आइदर हो सकता है, पर वो भी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, अगला है अल्फाबेट से। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर वुड बी द 6 टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द राइट? 11 फ्रॉम द राइट, दोनों को, अब एक L है एक R है, दोनों ऐड करेंगे। अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास? 11 + 6। आखिरी में R था तो R आया, राइट साइड से याद नहीं था तो लेफ्ट करने के लिए साइड से घटा देंगे, कितना आएगा? 10 फ्रॉम द लेफ्ट। 10 फ्रॉम द लेफ्ट पे अल्फाबेट आता है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाए। है ना जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या है? लक्ष्य स्टार्टिंग वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट, खड़ा है, वेस्ट की तरफ जाता है, और कितना जाता है? 10 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट एंड गोज 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। देन अगेन टेक्स लेफ्ट एंड गोज 18 किलोमीटर। ठीक है जी। इन विच डायरेक्शन नाउ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट। साउथ ईस्ट तरफ आपके पास यहाँ पे देख रहा है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सम बेंचेस आर टेबल, सम बेंचेस आर टेबल एंड नो टेबल इज ब्लैक। चलो जी, सबसे पहले ये हो गया। अब सबसे पहले है सम टेबल आर बेंचेस, सम टेबल आर बेंचेस, ठीक है। अगला क्या है? नो बेंचेस ब्लैक, पूरे के पूरे बेंच ब्लैक नहीं है बेटा, कोई रिलेशन, ओनली वन फॉलोज। अगला क्या है? ऑल पेन ड्राइव आर चौक, सारे के सारे पेन ड्राइव क्या है? चौक हैं। एंड ऑल चौक आर कंप्यूटर,
ऑल कंप्यूटर आर पेन ड्राइव, ऑल कंप्यूटर आर पेन ड्राइव तो गलत है बेटा। ऑल पेन ड्राइव और कंप्यूटर, सारे सारे पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर, हाँ ये सही है। तो ऑल ओनली आपके पास सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है मिसिंग सीरीज का, तो मिसिंग चेक करते हैं। तो बी की वैल्यू बेटा होती है 2 आगे 4 आगे से 8 10 12 एंड 14। तो नेक्स्ट इज योर दैट इज बी पे आएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। रचना करेक्टली रिमेंबर दैट द लास्ट स्पोर्ट मीट, रचना को याद है आपके पास कि लास्ट स्पोर्ट मीट जो है वाज हेल्ड आफ्टर जनवरी, जनवरी के बाद हुई है मतलब, और बिफोर अगस्त, जनवरी के बाद मतलब फरवरी, मार्च में, अप्रैल में, मई में एंड जुलाई। देन आगे आपके पास क्या है, नाडा करेक्टली रिमेंबर दैट वाज मेड हेल्ड वाज बिफोर जून, जून से पहले हुई है। तो आपके पास यहाँ फरवरी के तो बाद हुई थी, तो फेब, मार्च, अप्रैल और मई में ही हुई, क्योंकि उसको तो याद है कि जून से पहले हुई है, तो यहाँ तक ही है। देन आगे है दीपा करेक्टली रिमेंबर दैट द मीट वाज इन द मंथ विच द स्पोर्ट मीट वाज हेल्ड हैड मोर देन 30 डेज। ये कब पैदा हुई, कब हुई थी, 30 दिन से ज़्यादा वाले दिनों में। तो 30 दिन से ज़्यादा दिन निकाल लो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपके पास 31 है और 31 और 31 दोनों का कॉमन डे जो निकल के आ रहे हैं वो है मार्च और मई, मार्च और दोनों के कॉमन दिन जो निकल के आ रहे हैं वो है मार्च और मई। तो आंसर क्या आएगा, सी। आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। पहले डैश है, ए वाई डब्ल्यू जी ई सी एम ए आई एस क्यू। चलो जी बेटा चेक करें जरा यहाँ पे क्या है। 1 25 23 7 5 3 13 11 9 19 17 15। तो अब यहाँ देखो 15 से 2 17, 17 से 2 19, 9 से 2 11, 11 से 2 13, 3 से 2 5, 5 से 2 7, 23 से 2 25, 25 से 2। अब अगर बात करता हूँ तो 2 2 आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे 26, यहाँ पे 24, यहाँ पे 23, तो ये तो कट गया। तो यहाँ पे भी आपके पास कैंसल आउट हो रही है। यू एस क्यू आपके पास 21 19। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो आंसर इज सी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वट वुड बी द एंगल बिटवीन द आर हैंड, क्या लिखा है, आर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक हैज 11:20, 11:20 पे आपके पास यहाँ पे बताना है। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है 60h माइनस 11 आपके पास होल ब्रैकेट बाई में 2 आपके पास। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले देखते हैं 60, H स्टैंड फॉर R, इंटू में 11 माइनस 11 माइनस 20, 11 इंटू में 20 बाई में 2। तो जी अगर 11 करता हूँ तो 660 आता है और यहाँ पे 220 आता है, 11 इंटू 2 22। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 440 बटा में 2, 440 बटा में 2 इक्वल टू 2, डी ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्या है। ई एफ टी पी और निकालना किसका है, एच ई ए आर टी ई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 10 5 1 12
15, 21, 19, 2, 6, 11, 11, 20, 22 एंड आपके पास। तो बेटा अगर यहाँ पे बात करी जाए यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले ये चीज़ को समझा जाए। अब देखो A से B आ गया, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आपके पास 5 से 6 आ गया और 10 से 11 आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आपके पास इसको छोड़ देते हैं तो 19 से 20 आ गया, 21 से 22 आ गया, 15 से 16 आ गया और 11 से 12 आ गया +1। यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। अल्टीमेटली पहले 3 के पार्ट में इसे डिवाइड कर लो और आपके पास यहाँ +1 कर दो। ए से क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा, ई से एफ आ जाएगा, एच से आई आ जाएगा। तो बी एफ आई ये तो कट गया, ये भी कट गया। आपके पास टी आपके पास 20 होता है, 20 का आपके पास यू आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन आ डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें आपके पास क्या पूछा गया है, फाइंड द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल निकालने हैं बेटा तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1, 1, 3, 4 है। तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है जितने आपके पास ये बन रहे हैं 4 इंटू 2 कर दो, 4 इंटू 2 मीन्स 8, 8 और आपके पास कितने बन गए 24, फिर ये 25, फिर ये 26, फिर ये बड़ा 27 और फिर ये बड़ा 28। तो बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अगर यहाँ पे है ए बी डी डी ई के एच एम एस एम टी बी एस टी एल, अगर ये पता चल गया तो आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलो जी, यहाँ पे देखते हैं, या 1 है, यहाँ पे 4 है, 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19। अगर बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कितने ऐड हुए हैं, +4, 5, +6, तो +7 ही आगे ऐड होंगे। +7 अगर करते हैं तो आपके पास कितना बन जाएगा 26, 26 बन जाएगा, मतलब जेड आएगा, ये तो कंफर्म। आगे अगर बात करता हूँ यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 से 7 पे गए हैं, कितने ऐड हुए हैं, +5, +6, 7 से 13, +7, +8, +9। अब 9 और 2 क्या होंगे 11, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, ये ही आएगा। ठीक है, आगे अगर चेक करता हूँ तो 4 है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है। हाँ जी, 4 से अगर यहाँ पे आप लोग जाते हैं 11 में तो +7, आगे अगर यहाँ पे जाते हैं 19, +8, आगे अगर जाते हैं +9 और +10 और +11, 11 अगर कर देते हैं तो 23, मतलब ये भी कट गया, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, तो होपफुली यहाँ तक भी आपको बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और मॉक टेस्ट नंबर है आपका 66। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एट प्रेजेंट प्रिया इज ट्वाइस एज सारिका एज। प्रिया की एज डबल है। अगर हम कहें कि इसकी एज x है तो प्रिया की एज कितनी हो जाएगी, इससे डबल हो जाएगी, 2x हो जाएगी। 8 ईयर हैंस द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रिया एंड सारिका एज विल बी 22:13। अगर पहले 2:1 था, x की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों रेशियो ही हमारे पास हैं, और सेकंड रेशियो कितना है 22:13। तो सारिका की एज हमें बतानी है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 का। तो आप क्या करो, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई। जैसे ही ऊपर अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 2 18, और ये कितना हो गया 9। इधर से भी 4 का डिफरेंस आ गया, इधर से भी। और ये जो 4 का डिफरेंस है क्वेश्चन में 8 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज पूछी थी, तो 9 के हिसाब से 9 × 2 18 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A man purchased a cow for 3,000 and sold it in the same day for 3,600। के 3,000 की खरीद कर
3600 में बेच रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 600 रुपए का प्रॉफिट कमा। अलोइंग दैट बायर ए क्रेडिट फॉर 2 years, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम, देन द मैन हैज ए गेन। देखो 10% 2 ईयर के लिए तो मतलब 20% होगा, और मैं अगर 20% के ऊपर 3000 के ऊपर कैलकुलेट करता हूं तो ये भी 600 ही है, मतलब दोनों में सेम ही पैसा उसको मिलेगा, तो इसलिए उसको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी 0% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिखा स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000 इन 1999। ठीक है, क्या कह रहा है कि शिखा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने 50,000 रुपये लगाए। ठीक है, शिखा ने कितना पैसा लगाया है, 50,000 रुपये लगाए हैं। इन द 2000 से इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000। अगले साल उसने 20,000 रुपये और इन्वेस्ट किए, और जैसे ही उसने 20,000 और इन्वेस्ट किए का जो टोटल अमाउंट है वो हो गया 70,000। ठीक है, he invested additional amount of 20,000 and Raju joined him with an amount of 70,000, और इसी के साथ राजू ने उसको ज्वाइन किया है 70,000 के साथ। इन 2001 शिखा इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000, और फिर से 20,000 रुपये लगाए, मतलब इसका जो टोटल पैसा है वो 90,000 रुपये हो गए। एंड जोली ज्वाइन हिम विद एन अमाउंट ऑफ 70,000, और अब इसको जोली ने भी ज्वाइन किया है, और जोली ने भी कितने साथ अमाउंट के साथ 70,000 के साथ। What will be the Raju share in the profit of 3 lakh earned at the end of 3 years? 3 साल तक पैसा चला, into 1 to 1। ठीक है, 50,000 एक साल के लिए, फिर 70,000 एक साल के लिए, फिर 90,000 एक साल के लिए। ठीक है, अब देखो 7 और 5 12 और 9 21, ये 70,000 रुपये 2 साल के लिए, 14,000, और ये एक के लिए तो 70,000। रेशो बनाएंगे तो रेशो आ गया 3, 2 और 1, मतलब टोटल कितना प्रॉफिट 6, और 6 कितने के बराबर, 3 लाख के बराबर। एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 50,000 के बराबर हो जाएगा। तो राजू का शेयर था 2 यूनिट, 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू इज सेम। पी और क्यू का जो प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, सेलिंग द आर्टिकल फॉर 1800 ईच, और दोनों ही 1800 रुपये में आर्टिकल को बेचते हैं। बट ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस व्हाइल बी क्यू कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस, विच इज इक्वल टू 20%। वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है। देखो अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1। तो सीपी और एसपी की बात करें तो जिसने सीपी पे कैलकुलेट किया था 5:6। ठीक है, इसका कितना होगा, ये 4, ये भी 6 होगा। अब देखो इसका प्रॉफिट 1 है और इसका प्रॉफिट कितना है, 1.2। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.2 का। ठीक है, और 6 कितने के बराबर था क्वेश्चन में, 1800 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के। तो 0.2 कितने के इक्वल होगा, 0 से पॉइंट कैंसिल, तो 6 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाटरमेलन वेटिंग 20 kg कंटेन्स 96% वाटर। अब देखो 96% अगर वाटर है तो जो पल्प का पार्ट है वो कितना होगा, 4% होगा। 4% ऑफ 20 kg, क्योंकि वेट कितना था, 20 kg। ठीक है, उसके बाद क्या करें, ड्राई फ्रूट जब उसको धूप में रखा तो अब 95% वाटर है, तो पल्प कितना होगा, 5%, और अब उसका वेट कितना होगा वो हमें निकालना है, तो सपोज x होगा। देखो 5 इस 20 को 4 पे डिवाइड करेगा, 4 × 4 16। 3 आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज वन मेस फॉर 30 बोर्डर्स इन ए सर्टेन हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ बोर्डर्स वाज इंक्रीज बाय 10। पहले कितने थे, 30 थे, 30 के अकॉर्डिंग एवरेज मान लिया x। अब इसमें 10 लोग और बढ़ गए तो टोटल लोग कितने हो गए, 40, और उसके बाद जो एक्सपेंस है वो 40 से इंक्रीज हुआ और एवरेज क्या हो गया, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30x + 40 इज इक्वल टू 40x - 8। तो 10x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 120, तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो 30 लोग थे, एवरेज 12 है, तो 12 × 3 360 रुपये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन टेक्स वॉकिंग एंड राइडिंग बैक, मतलब वॉक और राइडिंग करने में उसको 6 घंटे और 15 मिनट का टाइम लग रहा है, 6 hours 15 minutes। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, देखो अगर इसको डबल कर ले तो मतलब हम कह सकते हैं
कि अब उसको 12 आवर्स और 30 मिनट का टाइम लगेगा, 12 घंटे और 30 मिनट, क्योंकि अगर वो राइड वॉकिंग भी डबल कर रहा है और राइडिंग भी डबल कर रहा है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब वो बोथ साइड वॉक कर जाता है तो उसको 7 आवर्स और 45 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, अब 12.5 घंटे में से आप अगर ये माइनस करोगे 7 घंटे 45 मिनट, तो टाइम कितना आएगा आपका 4 घंटे 45 मिनट। अब ऑप्शन से ही आपको आइडिया हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 रुपीज पर केजी एंड टाइप 2 इज 20 रुपीज पर केजी। पहले के उसने 2 केजी लिया है और थर्ड का उसने 3 केजी लिया है। देन द पर केजी प्राइस, मिक्सचर का प्राइस कितना होगा, ये 30, ये हो गया 60 डिवाइड बाय 5, तो 90 डिवाइड बाय 5 कितने पे डिवाइड करेगा, 18 पे डिवाइड, 18 रुपीज पर केजी मिक्सचर की कॉस्ट। नेक्स्ट क्या करें, 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज। 10 वुमेन करते हैं 7 डेज में और 10 चिल्ड्रन करते हैं 14 डेज। 10 से 10 कैन, इसको 2 पे डिवाइड कर, तो वुमेन किसके इक्वल है, 2 चिल्ड्रन। तो वुमेन और चाइल्ड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो। अब उसने आपसे पूछा 5 वुमेन, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस चिल्ड्रन कितने हैं 10, एफिशिएंसी कितनी है 1 इन 2 डेज। तो 10 वुमेन एफिशिएंसी 2 और 7 डेज में वर्क करते हैं। देखो 10 प्लस 10 20 से 20 कैंसिल, तो डी कितना आ गया 7। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A merchant has 100 kg of sugar, part of which 8%, कुछ 8% प्रॉफिट पे, बाकी 18% प्रॉफिट पे, और टोटल के ऊपर कितना हुआ 14%। तो सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको एलिगेशन लगा देना है। 18 में से 14 का कितना बचा 4, 14 में से 8 का कितना बचा 6, तो रेशियो कितना हुआ आपका 2:3, मतलब टोटल कितना हो गया 5। 5 कितने के इक्वल है 1000 के, तो 1 किसके इक्वल होगा आपका 200 के। तो 18 वाला पूछा था तो इंटू 200 कर दो, तो 600 आपका क्या होगा इसको का राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन थे अगर ध्यान से किया जाता तो क्वेश्चनों को। वो क्या करें, 2 प्लेसेस P एंड Q आर 92 किलोमीटर अपार्ट। ए ट्रेन लीव्स P एंड Q एंड एट द सेम टाइम आफ्टर अनदर ट्रेन लीव्स Q for P। वो ट्रेन मीट आफ्टर 4 आवर्स। 92 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में कवर किया, तो मतलब उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड थी वो 23। उसने देखो दोनों की स्पीड ही पूछी, 15 + 8 23 ऑप्शन होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में देखो आपका सम 23 नहीं बन रहा, ठीक है, या तो उससे ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। ए मैन ड्राइविंग एट 2/3 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, तो अगर पहले स्पीड 3 थी तो अब स्पीड कितनी है 2। अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा 2:, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 60 मिनट होगी। यही पूछा था यूजुअल टाइम, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इज रिड्यूस इन द रेशियो 3:2, के पहले अगर 3 आदमी थे तो अब 2 आदमी हैं। अगर सैलरी किस रेशियो में है 4 और 5 के रेशियो में है। पहले देखो 4 थी 12 और अब कितना 10, पहले 12 रुपये थे अब 10 रुपये, मतलब उन्होंने 2 रुपये बचाए हैं, और 2 कितने के बराबर है 12,000 के, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 6,000 के बराबर हो जाएगा। तो 12 × 6 72,000, मतलब वो पहले कितना पैसा दे रहे थे 72,000 रुपीज़ पे कर रहे थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इस सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कन्फ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Hello everybody, welcome to the English section of this mock, and we have the mock number 66 in front of you with the English section on board. तो यहाँ पर सबसे पहले आया आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सुमित वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल ड्रेस। यहाँ पर आप इसको ठीक करना है, वो अच्छा या स्मार्ट लगता ट्रेडिशनल ड्रेस में, तो सुमित वुड हैव लुक्ड स्मार्ट, तो आंसर आ गया बी, अच्छा लगता, हैव थर्ड फॉर्म। इज देयर एनी प्लेस फॉर मी टू सिट, प्लेस है जगह, उसकी जगह लगाने के लिए रूम, क्या कोई जगह है मेरे लिए, इज देयर एनी रूम फॉर मी टू सिट। नेक्स्ट, आई जस्ट पेड हिम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आपको बताना है यहाँ पर ये जो इटैलिक्स में इडियम दिया है इसमें से कौन सा है। तो लेफ्ट हैंडेड का मतलब एक इनसिंसियर सा कॉम्प्लीमेंट है, मैं मतलब सच नहीं था। लेफ्ट हैंडेड ऐसे ही राइट का ऑपोजिट, राइट इज द मेन हैंड, वो। The new CM stuck his neck out today and promised 10 kgs free wheat a month for all rural families. So what? Stuck his neck out का मतलब क्या हुआ, उसने एक तरह से रिस्क लिया आज
और उसने ऑफर कर दिया, ऐलान कर दिया कि मैं रूरल फैमिलीज को 10 किलो वीट दूंगा। अगला, वी वेंट टू द फर्स्ट फ्लोर थ्रू द रिकेटी वुडन स्टेयर्स। ऑपोजिट निकालना है ना, तो रिकेटी इज लाइक जो कांपती है, अनस्टेबल है, उसका ऑपोजिट इज ऑफ कोर्स स्टेबल। ओल्ड, नैरो और अनकंफर्टेबल तीनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो एक ही वर्ड आंसर पॉजिटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव। दे मेड अ प्रॉफ्लिगेट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। प्रॉफ्लिगेट यूज क्या होता है? उन्होंने एक तरह से मतलब अच्छा खासा खर्चा, उसका ऑपोजिट क्या हो गया? थ्रिफ्टी, सोच समझ के कम खर्चे करना। आई हैव डैश फिनिश्ड राइटिंग द बुक। आई हैव नियरली फिनिश्ड राइटिंग द बुक। नियरली मतलब नियरली फिनिश कर दिया हमने बुक राइट करना। अगला, एंटोनिम्स निकालने हैं, जो नीचे वर्ड गिवन है ऑर्डर। ऑर्डर के एंटोनिम सिस्टम, सेम्बलेंस, क्योस या फिर गिल्ड। सिस्टम तो सेम हो गया, सेम्बलेंस इज काइंड ऑफ रिजेंबलेंस, जैसे बोलते हैं ना सिमिलर तरीके से चल रहा है। क्योस इज गड़बड़, तो आंसर इज सी। She has been aspiring takes preposition to, as simple as that. Then you have to find the correct sentence. The driver could not avoid hitting her. I was delighted after hearing that my missing baggages, baggages नहीं होता, baggage होता है. It was difficult to hear the speaker because I was sitting at the back. चलेगा. Some people have a very negative attitude towards work. ठीक है, तो आंसर सी आ गया एब्सोल्युटली। तीनों में मिस्टेक मिल गई है बहुत सिंपल तरीके से। करेक्ट प्रेपोजिशन, ही लेफ्ट फॉर कैलकत्ता बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा वो कलकत्ता के लिए लीव किया था। ग्रामेटिकल, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी। एक लिविंग बीइंग्स एक से ज्यादा है, नीड लगा प्लूरल, एनर्जी चाहिए किसके लिए? बॉडी मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेन देयर बॉडीज। Yeah, there we go. Thanks for watching it. We shall be meeting in the other classes as well. Stay tuned.